Hello students, we are studying chapter 1 Biodiversity and Classification. In my last video, I had cleared terms biodiversity and classification, and I had also told you about former attempts of grouping and classification. So today I will tell you about Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus was a Swedish botanist. He developed a method of classifying organisms properly, based on classifying according to physical and structural similarities. Example, he might use the similarities in flower parts as a basis for classifying flowering plants. Became fundamental and foundational way for today's modern classification system. Carlos Linnaeus system became the foundational way for today's modern classification system. Carlos Linnaeus has classified plants and animals according to binomial system of nomenclature, and for this he is called as a father of taxonomy. Carlos Linnaeus has distributed all the living organisms into two main groups, kingdom Animalia and kingdom Plantae. Now, what is binomial system? Modern classification systems use a two-word naming system. Called binomial nomenclature. Bi means two and nomial means associated with a name. Species is given a unique and stable name. It means that each species is composed of two Latinized words similar to name and surname, just as name and surname. First one is genus and second is species. First word identifies the genus. It is name of the organism. Genus is the name of the organism. Genus and plural form, genus is a singular and plural form of genus is genera. And consists of a group of similar species. So, genus consists of a group of similar species. Second word, the species, often describes a characteristics of organism. Species describes the characteristics of the organism. So, scientific name means the genus name plus species name. Example, Homo sapiens. Homo sapiens actually means wise man. Genus names begin with capital letter. Capital, see here. In Homo, H is capital. And species begins with lower case letter. C. S is written in small letter.
Example, but these both names, name of genus and species, both names are always italicized or underlined. Italicized or underlined. See here. Why we use Latin? Latin is the language of scientific names. Latin is the language of scientific names. Many organisms have common names, just like you might have nicknames. I'm giving you one example. Sutherlandia frutescens. It is a scientific name of cancer bush or canker boss. Canker boss is a common name. See in diagram. This is a diagram of cancer bush, and its scientific name is Sutherlandia frutescens. This Latin language is accepted by, these scientific names are accepted by speakers of all languages. Each name applies only to one species. Each species has only one name. Each species has only one name. Now, the Linnean hierarchy for a man is kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Animalia में क्या होता है? मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विथ इंजेक्शन ऑफ फूड. ये जो है किंगडम एनिमिलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशलिटी है. फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट एंड पेयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट. क्लास मेमेलिया. क्लास मेमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेमेलिया क्लास में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बॉडी पर हेयर होते हैं और एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. ऑर्डर प्राइमेट. Opposable thumb. Opposable primate means they have opposable thumb, 5 fingers each in fore and hind palm. Hind palm और fore palm पर 5 fingers होते हैं. Family Hominidae. Hominidae means bipedal movement. Bipedal movement मतलब दो पैरों पर चलना. मूवमेंट कैसी होती है? दो पैरों से चलने वाली. तो होमिनिडी जो है उसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने दो पैरों पर चलते हैं. जीनियस इज होमो मीन्स वेल डेवलप्ड ब्रेन. होमो मीन्स वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड स्पीशीज इज सेपियंस. सो फॉर मैन वी कैन क्लासिफाई मैन like this: kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primate, family Hominidae, genus Homo and species Sapiens. हायरार्की के हिसाब से देखें तो किंगडम सबसे बड़ा. किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन species. There were some limitations in two kingdom classification system. Linnaeus classified organisms either plants or animals, but several organisms were eventually found to express both animal and plant characters. तो कार्ल्स लिनियस के क्लासिफिकेशन को मान्यता मिली, बहुत सराहा गया उनके
इस काम को, लेकिन उनके इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां तो थी। लिनियस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स, बट सेवरल ऑर्गेनिजम्स वेर इवेंचुअली फाउंड टू एक्सप्रेस बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर्स। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं। यहाँ एक बात जो मेन है प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स को अलग करने वाली, वो ये होती है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बट दिस सी दिस example of Euglena. Euglena is such an organism that shows both animal and plant characters. It has chloroplast, does not have cell wall. अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्लोरोफिल है तो ये प्लांट है, अगर प्लांट है तो फिर इसमें प्लांट सेल है तो फिर इसमें सेल वॉल भी होनी चाहिए, पर इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, एनिमल सेल के कैरेक्टर को भी शो कर रहा है और प्लांट सेल के भी कैरेक्टर को शो कर रहा है। यूग्लिना जो है उसमें उसके सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है जो कि एनिमल सेल का कैरेक्टर है। एट द सेम टाइम उसमें क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। इसका मतलब यूग्लिना एनिमल और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब ऐसे एनिमल को न तो प्लांट में रख सक रहे हैं हम, न तो एनिमल में रख सक रहे हैं, तब ऐसे एनिमल को कौन से किंगडम में रखा जाए? तो इस तरह के लिमिटेशंस जो है लिनियस के क्लासिफिकेशन में पाए गए। लिनियस did not have the scope to study the internal structure of cells during his time. जब लिनियस ने अपनी स्टडी स्टार्ट की क्लासिफिकेशन की, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उस समय माइक्रोस्कोप्स जो है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नहीं थे और सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखा जा सकता था। सो दस इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन स्कीमा। तो इस तरह से लिनियस सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने क्लासिफिकेशन स्कीम में कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि उनके समय इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए उस ढंग के एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। इट वॉज मच लेटर व्हेन माइक्रोस्कोप्स विद हायर मैग्निफिकेशन पावर वेयर इन्वेंटेड दैट वेरिएशंस इन internal cellular structures also formed a basis of classification. जब लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया उस समय माइक्रोस्कोप हाई मैग्निफिकेशन पावर के नहीं होने के कारण वो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन उनके बाद वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उनके पास एक बेसिस और था, और वो था इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर भी लिनियस का लिमिटेशन, लिनियस के क्लासिफिकेशन में लिमिटेशन था। एज द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड, न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज मॉडिफाइड। तो जब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकने लगी तो साइंटिस्ट को एक बेसिस और मिल गया और इस तरह से क्लासिफिकेशन का तरीका ज़्यादा मॉडिफाई हो गया।
डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्टेड फाइंडिंग वे, और क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए नए नए रास्ते और निकल आए. वन सच स्कीमा वाज suggested by R.H. Whittaker in the year 1969. 1969 means recently. 1969 मतलब बहुत ज़्यादा ईयर्स इसके लिए नहीं हुए, तब तक के साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ चुके थे. तो इस तरीके से व्हिटेकर को जो है एक ब्रॉड वे मिला अपने क्लासिफिकेशन को रखने का, और व्हिटेकर क्लासिफाइड द होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम्स. तो इस तरह से व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स को के क्लासिफिकेशन को रखा सामने, एंड हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. और व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो इन कैरेक्टर्स पर आधारित था. उसने क्लासिफाई करने के लिए कौन से कैरेक्टर्स लिए? द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. देन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है. मतलब एनिमल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है. तो इन 3 चीज़ों पर व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन बेस किया, और अभी व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को ज़्यादा मान्यता है. अभी हम व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर 5 किंगडम्स ऑफ व्हिटेकर. I have already told you in yesterday's video, but today I will again explain it. So he divided the entire living world into following kingdoms. Kingdom Monera. In this kingdom, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia, Kingdom Plantae. This is the ray diagram. This is the ray diagram of Whittaker's classification. So see here, I will explain it for you. See on page number 6, living organisms. See the classification of Whittaker's. Living organism. Living organisms divided into 2 groups, prokaryotic and eukaryotic. Now prokaryotic may be unicellular. So if unicellular, then he put it in Monera. So Monera is the first kingdom. Monera is the first kingdom. Means the organisms belong to Monera, kingdom Monera, are prokaryotic and unicellular. Now eukaryotes. Eukaryotes may be unicellular, may be multicellular. If the organism is eukaryote and unicellular, eukaryote and unicellular, then it is put in Protista. It is kept in kingdom Protista. So in Monera, prokaryote, unicellular, it will be Monera. Unicellular, eukaryote, unicellular. देखिए डिफरेंस क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है. तो अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, मतलब उसमें न्यूक्लियस उसका मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ है, ट्रू न्यूक्लियस अगर नहीं है तो वो प्रोकैरियोट है.
और अगर वो यूनिसेलुलर भी है साथ में तो उसको हम मोनेरा किंगडम में रखेंगे। पर अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, देन अगर वो यूनिसेलुलर भी है पर चूंकि उसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। अब यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल है और जिनमें सेल वॉल नहीं है। अब आपको पता है कि सेल वॉल मीन्स सेल वॉल, इफ सेल वॉल प्रेजेंट देन इट इज प्लांट। सो अगर प्लांट है तो फिर वो अपना फूड खुद बना सकता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हेट्रोट्रॉप्स है। तो जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिनमें होती है, उनको हम रखेंगे किंगडम प्लांटी। और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता मीन्स एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उनको रखेंगे फंगी में। तो इस तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी। और विदाउट सेल वॉल मीन्स एनिमेलिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वीटेकर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे किंगडम्स के बारे में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।